Hello students, how are you? I hope you all are fine. We are back with class 10th topic, that is nationalism in India. In this topic we will start from the point where we have ended lastly. We studied about nationalism, then economic and political condition of India during First World War, arrival of Mahatma Gandhi, concept of Satyagraha, how Mahatma Gandhi used Satyagraha, how successfully Mahatma Gandhi conducted Satyagraha throughout all India. Then we studied about Rowlatt Act, then we studied about Rowlatt Satyagraha, then we studied about Jallianwala Bagh too. In Jallianwala Bagh we understood what kind of atrocities were conducted on innocent people and hundreds of people were killed, and as a result the people retaliated so that British could learn a lesson. But even in spite of retaliation, British humiliated satyagrahis and lot of violence took place. So because of all this violence, Mahatma Gandhi decided to call off Rowlatt Satyagraha. So we have studied about all this throughout in that topic. I hope you all have understood that. Now we will talk about Khilafat issue, that is also related to the same. When Mahatma Gandhi found that the Rowlatt Satyagraha did not succeed, so the basic reason for this was why Rowlatt Act didn't succeeded, why Rowlatt Satyagraha did not succeeded. So basic reason is this Satyagraha was only limited to certain places. It was not spread all over the country. Second reason, Rowlatt Satyagraha, as I said, was only limited to cities. Also, all sections of the society were also not included in it. They never participated. So this was some reason that this movement didn't took off as it was required, but still its impact was very much. So looking at its impact, Mahatma Gandhi now decided that he had to launch a broad-based movement. Broad-based movement in which all sections of the society will be included. Also, apart from it, there should not be any kind of what we call it violence. So for that, Mahatma Gandhi wanted that all sections of the society must participate. Only then such kind of satyagrahas or movement could be successful. Otherwise they wouldn't be. So Mahatma Gandhi noticed that the two big populations of India, that were Hindus and Muslims, and without bringing both of them together, such kind of movement is not possible. तो जैसा कि आपने समझ लिया अभी तक कि महात्मा गांधी को पता था कि बिना दोनों कम्युनिटीज़ को साथ में लाए किसी भी प्रकार का ब्रॉड बेस मूवमेंट पॉसिबल नहीं था. और ये हम लोग सब जानते हैं कि भाई उस समय दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, और ज़्यादा विश्वास नहीं करने की वजह से क्या था कि जब वो एक दूसरे पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी तो उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना एक बहुत बड़ा टास्क था. तो महात्मा गांधी
एक नया ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चालू करना चाहते थे, लेकिन उनको ये पता था कि दैट इट कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना था, जैसे यहाँ लिखा हुआ मैंने, ही वॉज सर्टेन दैट नो सच ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट कुड बी लॉन्च्ड इन इंडिया विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। तो क्या करे महात्मा गांधी जिससे कि दोनों की दोनों कम्युनिटीज़ क्या कर पाए, एक दूसरे के साथ जो है एक साथ मिलकर देश के लिए लड़ाई लड़े। तो महात्मा गांधी ने क्या डिसाइड किया कि उस समय वो एक इशू चल रहा था वर्ल्ड वाइड विच वॉज कॉल्ड खिलाफत इशू। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो खिलाफत इशू की हेल्प से दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इसकी खिलाफत इशू ये था क्या, ये खिलाफत इशू था क्या? तो खिलाफत इशू के बारे में आप जान लीजिए कि खिलाफत इशू है क्या। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान का इशू है ये, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको ऑलरेडी पता है कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ऑटोमन टर्की की डिफीट के साथ ख़त्म हुआ था। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अगेन दो जो थे आपके ग्रुप्स थे, एक एलाइज थे, एक एक्सिस थे। ठीक है, एलाइज के अंदर यूएसएसआर, यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे देश थे, और जो एक्सिस पावर्स थे उसके अंदर जर्मनी, इटली, ऑटोमन टर्की, ये सारे देश थे। तो इसमें एक्सिस पावर हार गया था, तो टर्की की डिफीट के साथ ही ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। तो एक बेसिक चीज़ आप जानते हो, जो आपने पुरानी बहुत सारी मूवीज़ भी आपने देखी है, पीरियडिकल मूवीज़, हिस्टोरिकल मूवीज़, जिसके अंदर एक राजा अगर जीतता है तो हारने वाले राजा को जीतने वाले राजा की कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जीतने वालों की कंडीशन ऑटोमन टर्की को एक्सेप्ट करनी पड़ी, और ऐसा एक र्यूमर फैला, र्यूमर मतलब आप समझ गए होंगे कि एक अफवाह फैली कि ऑटोमन टर्की के ऊपर एक हार्श पीस ट्रिटी इम्पोज की गई है। मतलब एक ऐसी संधि डाली गई है, लादी गई है पीस लाने के लिए, जो कहीं ना कहीं ऑटोमन टर्की के पक्ष में नहीं है। ऐसा एक अफवाह फैली। ठीक है, ऐसी एक अफवाह फैली। और चूंकि आप लोग जानते हैं, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि भाई जो ऑटोमन टर्की है, इसका जो किंग होता है उसको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, उसको ऑटोमन एम्परर कहा जाता है। और ये जो ऑटोमन एम्परर होता है इसको खलीफा भी कहते हैं। ठीक है, इसको खलीफा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑटोमन एम्परर को खलीफा भी कहते हैं। खलीफा कौन होता है? तो यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है कि खलीफा जो होता है वो स्पिरिचुअल हेड होता है। स्पिरिचुअल हेड का हम कह सकते हैं हिंदी में आध्यात्मिक गुरु होता है, आध्यात्मिक हेड होता है पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जितने भी मुस्लिम का लोग रहते हैं पूरी दुनिया भर में, उनके जो स्पिरिचुअल हेड है वो टर्की का एम्परर होता है, उसको ये लोग खलीफा कहते हैं। तो जब ये अफवाह फैली कि एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज हुई है टर्की के ऊपर, ऑटोमन टर्की के ऊपर, और इसमें क्या हुआ है कि टेम्पोरल पावर जो टर्की के एम्परर जो खलीफा जो है, टर्की का खलीफा जो वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी का खलीफा है, उसके टेम्पोरल पावर छीन लिए गए हैं। तो ये टेम्पोरल पावर छीनने की अफवाह जब पूरी दुनिया में फैली तो दुनिया भर के मुसलमान लोग जो थे, जो खलीफा के सपोर्ट में थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उनके टेम्पोरल पावर को डिफेंड किया। तो सिमिलर सिचुएशन इंडिया में भी थी। इंडिया के भी मुस्लिम लोगों ने इस खलीफा के टेम्पोरल पावर को डिफेंड किया। तो खलीफा के टेम्पोरल पावर को डिफेंड करते हुए इंडिया में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। ठीक है, इंडिया में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। कब? मार्च 1919 में। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है, मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई। ठीक है, खलीफा के टेम्पोरल पावर को बचाने के लिए। ये खिलाफत कमेटी किसने बनाई? तो ये दो ब्रदर्स थे, जिनमें से एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। ठीक है, और ये दोनों मुस्लिम लीडर्स थे और
महात्मा गांधी ने इन दोनों मुस्लिम लीडर्स के साथ बातचीत की और महात्मा गांधी ने कोशिश की कि इनको भी इस मास एक्शन में शामिल किया जाए। तो इनके बीच में डिस्कशन हुआ और तीनों ने इसके ऊपर एक पॉसिबिलिटी जताई कि हाँ, हिंदू और मुस्लिम मिलकर जो है आपस में एक मास एक्शन कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। महात्मा गांधी को ये एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई हिंदू और मुस्लिमों को एक लाने की। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर हम मुस्लिम के खिलाफत इशू को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बदले में मुस्लिम लोग भी कंट्री में ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट जो मूवमेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसके ज़रिए महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि ही विल ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन में, मतलब हर साल क्या होता है कि हर साल में एक बार दो बार कांग्रेस के सेशन होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते हैं। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, पहले से होते चले आ रहे हैं। सो व्हाट दे डिसाइडेड इन दिस सेशन ऑफ सितंबर 1920 इन कैलकाटा। आपको मैं ऑलरेडी बता दूं कि ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क मैप में यहाँ पूछा जाता है आपसे, मैप में आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। मैप में बताना होता है आपको। तो ये जगह कौन सी है? कैलकाटा। सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? कैलकाटा में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन में क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उनको इन्होंने कन्विंस कर लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाएगा और खिलाफत के साथ साथ स्वराज को भी उसमें शामिल किया जाएगा। मतलब इसमें 2 इशू को एड्रेस किया जाएगा। फर्स्ट इशू विल बी स्वराज एंड सेकंड इशू विल बी खिलाफत। मतलब इस मूवमेंट के अंदर 2 प्रकार के चीज़ों को लेकर मूवमेंट किया जाएगा। एक तो इंडिया के स्वराज के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए, और दूसरा खिलाफत के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया एक नए मूवमेंट को तैयार करने के लिए, जिसके अंदर मुस्लिमों को लाने की पूरी कोशिश हो गई और मुस्लिम उसके अंदर शामिल भी हो गए। तो यहीं से जन्म होता है इस मूवमेंट का, जो आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दैट इज़ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, कौन सा? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ये आपकी शुरुआत हो गई अब यहाँ पर बनने की। ठीक है, तो ये मूवमेंट शुरू होता है। अब क्वेश्चन इज कि चलो खिलाफत इश्यू तो हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वाई नॉन कॉपरेशन। ये नॉन कॉपरेशन क्यों? नॉन कॉपरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं असहयोग। काफ़ी सारी डेफिनेशन आपको इस वर्ड को सुनकर समझ में आ गई होगी। असहयोग का मतलब होता है कि आप किसी के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब कॉपरेट क्यों नहीं करेंगे? तो देखो आइडियोलॉजी क्या है कि नॉन कॉपरेशन ही क्यों? तो महात्मा गांधी कहते हैं अपनी बुक हिंद स्वराज में, जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, कि ब्रिटिश रूल इंडिया में जब एस्टैब्लिश हुआ था तो वो एस्टैब्लिश क्यों हो पाया? क्योंकि इंडियन लोगों ने कॉपरेट किया। भाई कॉपरेट करने का मतलब हमने टैक्सेस पे किए, हमने उनका सामान खरीदे, हमने उनकी नौकरियां की। ठीक है ना, हमने सब कुछ उन्होंने जो कहा वो हमने करा। ठीक है, तो हमने कॉपरेट किया उनके साथ, इस वजह से ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ। और ये सर्वाइव क्यों कर पाया? क्योंकि अगेन सेम रीज़न, क्योंकि हम कॉपरेशन करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन लोग कॉपरेट करते चले आ रहे हैं इतने सालों से। तो इतने सालों से इंडियन लोग कॉपरेट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ब्रिटिश जो है वो इंडिया में रूल कर पाए। तो अगर ये इंडियन कॉपरेट्स नहीं करते तो इंडियन लोग उसी वक्त मना कर देते तो, या कॉपरेशन करने से मना कर देते तो क्या होता? मे बी रिजल्ट दूसरे होते। तो महात्मा गांधी ने इस बेसिक पॉइंट को सब पकड़ लिया और उन्होंने इस बेसिक पॉइंट को समझाने की कोशिश की इंडियन लोगों को, कि अगर इंडियन लोग ब्रिटिश लोगों को कॉपरेट करना मन से मना कर देंगे तो ब्रिटिश रूल जो है वो कम टू एन एंड इन ए ईयर। तो ब्रिटिश रूल 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। और क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन।
वाई महात्मा गांधी चॉस नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन क्यों चुना। आई होप आपको आंसर इसका मिल गया होगा। महात्मा गांधी चॉज नॉन कोऑपरेशन because according to him British rule was established in India and survived only because of the cooperation of Indians. If Indians refused to cooperate then British rule would come to an end in a year. ठीक है, so because of this concept Mahatma Gandhi chose non cooperation. ठीक है, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 1 मार्क में पूछा जा सकता है। अब ये 1 मार्क में आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है या 1 लाइन आंसर भी हो सकता है या फिल अप द ब्लैंक्स भी हो सकता है, मतलब किसी भी रूप में इसको पूछा जा सकता है, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ तो सब कुछ डिसाइड हो गया कि कैसे क्या होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने डिसाइड कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को भी मना लिया। अब क्वेश्चन इस कि ये आगे बढ़ेगा कैसे, इसकी रूपरेखा क्या होगी, या अब हम इसको कह सकते हैं कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी। देखो, किसी भी मूवमेंट को आगे बढ़ाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, कि स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ठीक है, और वो स्ट्रेटजी क्या होगी वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया जाएगा, स्टेजेस में अनफोल्ड किया जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको जैसे यहाँ टॉपिक लिख रखा, अनफोल्डिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया जाएगा, स्टेजेस में अनफोल्ड किया जाएगा। अनफोल्ड करने का सो दिस मूवमेंट विल अनफोल्ड इन अ स्टेज। अब ये अनफोल्ड जो होगा स्टेजेस में, वो स्टेजेस क्या क्या होंगी, ये स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली स्टेप होगी या स्टेज होगी सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स अवार्डेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, पहले तो आपको समझना है कि भाई सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स क्या है। तो देखो, टाइटल्स का मतलब होता है वो सम्मान जो गवर्नमेंट देती है किसी भी इंसान को उस देश के, कि उस देश का जो इंसान है वो किस तरीके से कोई कोई अचीवमेंट करता है, तो उस अचीवमेंट के लिए उसको सम्मान किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि भाई देश के अंदर कोई बहुत अच्छा काम करने के लिए स्पोर्ट्स की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में हम भारत रत्न देते हैं, तो भारत रत्न एक टाइटल है। ठीक है, ठीक है, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया। जैसे सेना के अंदर एक टाइटल दिया जाता है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है, वीर चक्र। ठीक है, ये सारे टाइटल हैं। जैसे नोबेल प्राइज मिलता है वर्ल्ड में, तो दिस ऑल आर टाइटल्स, दिस द टाइटल्स आर अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिटिश लोग भी ऐसे अवार्ड देती थी, टाइटल्स देती थी उस ज़माने में। तो जिन जिन को भी टाइटल्स मिले हैं वो सब क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। सरेंडर करने का मतलब अपने टाइटल्स जो है वो गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। ठीक है, अपने टाइटल्स जो गवर्नमेंट ने अवार्ड किए हैं उनको सब वापस कर देंगे। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो हम कह सकते हैं कि जब रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी बुक गीतांजलि के लिए लिटरेचर का नोबेल मिला था, ठीक है, तो इससे खुश होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है, कौन सी उपाधि दी थी, उनको एक टाइटल अवार्ड किया था, मतलब उनको सम्मानित किया था नाइटहुड किसके टाइटल से। जैसे भारत रत्न होता है ऐसे एक नाइटहुड उस समय टाइटल हुआ करता था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइटल को सरेंडर कर दिया वापस जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, उससे दुखी होकर। ठीक है, तो इसको मतलब उन्होंने उस टाइटल को वापस कर दिया। तो ऐसे ही महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे पहले आप क्या करो, ब्रिटिश लोगों ने आपको जो भी अवार्ड्स वगैरह दिए, टाइटल्स दिए, उनको आप क्या कर दो, सरेंडर कर दो, मतलब गवर्नमेंट को वापस दे दो। दूसरा स्टेप फिर क्या होगा,
बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। ये जितनी भी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, इन सबको क्या कर दिया जाए, बॉयकॉट कर दिया जाए। बॉयकॉट करने का मतलब इनका त्याग कर दिया जाए, छोड़ दीजिए। आप गवर्नमेंट स्कूल्स ज्वाइन मत कीजिए, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने मत जाइए, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने भी मत जाइए, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने और पढ़ाने मत जाइए। आप जो है आर्मी में अगर जॉब करते तो आर्मी छोड़ दो, पुलिस में जॉब करते तो पुलिस छोड़ दो, आप अगर सिविल सर्विसेज में हो ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो वो भी आप छोड़ दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हो अगर आप तो वो भी आप छोड़ दो। ठीक है। फॉरेन गुड्स अगर आप यूज़ करते, जो ब्रिटिश लोग विदेश से मंगाते हैं, अगर आप यूज़ करते हो तो उनको भी यूज़ करना आप बंद कर दो। मतलब ये सारी चीज़ों का आप क्या कर दो, त्याग कर दो। ठीक है। तो आप सारी चीज़ों का बॉयकॉट कर दो। और अगर इस बॉयकॉट करने के बाद गवर्नमेंट जो है अगर रिप्रेशन करती है, ठीक है, रिप्रेशन करने का मतलब आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है दबाव बनाती है, अत्याचार करती है, आपको परेशान करती है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर क्या होगा, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी लॉन्च। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। समझ में आ रही है आपको बात, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी जगह पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाएगा। अब दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, क्योंकि अभी तक तो देखो, अभी तक तो आप क्या कर रहे हो, टाइटल सरेंडर कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो, आपने टैक्स पे करने से मना नहीं किया। अभी तक आपने ब्रिटिश लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान करना शुरू नहीं किया है कि आपने उनकी सर्विसेज जो है, मतलब आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि बॉयकॉट वगैरह तो आपने कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे करने से मना नहीं किया है। अभी भी आप ब्रिटिश लोगों के कानूनों की पालना कर रहे हो। ठीक है, उनके जो भी कानून है, चाहे जस्ट हो चाहे अनजस्ट हो, उन सबको आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा तो फिर आप ये बॉयकॉट ही नहीं करोगे, तब उसके बाद तो आप उनकी आज्ञा मानना भी बंद कर दोगे, मतलब आप उनके कानूनों को मानना बंद कर दोगे। और साथ में आप जो है ऐसे कह सकते हो कि आप उनकी कोई भी बात नहीं मानोगे, ना आप टैक्स पे करोगे, ना रेवेन्यू पे करोगे, आप उनकी कोई मदद नहीं करोगे। ऐसे आप इस तरीके से मान के चलोगे कि गवर्नमेंट है ही नहीं हमारे देश में और हम इनको गवर्नमेंट मानते ही नहीं। भाई देखो, हम गवर्नमेंट मानते हैं तभी तो हम टैक्स पे करते हैं, हम गवर्नमेंट मानते हैं तभी तो हम रिवेन्यूज पे करते हैं, हम गवर्नमेंट मानते हैं तभी तो हम लॉ एंड ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी तक तो हम क्या करेंगे, सिर्फ शुरुआत में बॉयकॉट करेंगे। लेकिन इस बॉयकॉट करने के बाद अगर गवर्नमेंट हमको रिप्रेस करती है, मतलब हमें रोकने की, कुचलने की कोशिश करती है, तो फिर हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। अब सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब जैसा कि आपने वर्ड में सुना, डिसओबीडियंस, आज्ञा नहीं मानना, हम उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, उनका कोई कानून नहीं मानेंगे, हम उनका कोई ऑर्डर नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये रूपरेखा बनाई है, स्ट्रक्चर या स्ट्रेटेजी बना दी 3 स्टेप में महात्मा गांधी ने। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ सिंपल सा आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर नजर आता है वो ये है, हाउ महात्मा गांधी वांटेड टू अनफोल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे लिखा हुआ आ जाएगा एक्सप्लेन। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ महात्मा गांधी वांटेड टू अनफोल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इन 3 नंबर के क्वेश्चन में सिंपल सा आंसर है आपका, महात्मा गांधी वांटेड टू अनफोल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन स्टेजेस। और स्टेजेस क्या है, सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स अवॉइडेड बाय गवर्नमेंट, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, एंड इन केस इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन ए फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी लॉन्च्ड। ये आपकी 3 स्ट्रेटजीज है जो महात्मा गांधी ने क्या किया था, डिसाइड किया था। समझ में आ गया होगा आपको। अब इस स्ट्रेटजीज बनने के बाद महात्मा गांधी ने
कांग्रेस से जब बात की तो कांग्रेस अभी भी, जबकि हमने पढ़ा है कि भाई सितंबर 1920 के सेशन के अंदर कैलकाटा में कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हाँ चलो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कांग्रेस अभी भी क्या थी, कंसर्न थी, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी उनके साथ मुद्दा क्या था कि वो रेल्यूक्टेंट थे, मतलब हिचकिचा रहे थे। क्यों हिचकिचा रहे थे? क्योंकि नवंबर 1920 में चुनाव आने वाले थे। कौन से चुनाव? काउंसिल इलेक्शन, जो प्रोविंशियल काउंसिल और इंपीरियल काउंसिल है उनके इलेक्शंस आ रहे थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्स थी एक प्रकार की। तो कांग्रेस शुरुआत में उसको बॉयकॉट करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर नागपुर में सेशन होता है कांग्रेस का एक और, कब? दिसंबर 1920 में। अब आपको याद रखना है, ये दूसरा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया मैप बेस्ड। ठीक है, ये मैप वाला क्वेश्चन हो गया। एक मैप वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि सितंबर 1920 में कहाँ कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो कैलकाटा आंसर था। लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर आंसर है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के दोनों सेशन जो है ये दोनों 1920 में हुए थे। एक सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अब ये सारी रूपरेखा बन गई है, कांग्रेस ने इसको अप्रूव कर दिया नागपुर सेशन के अंदर, और अब मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये मूवमेंट शुरू होता है जनवरी 1921 में। कब शुरू होता है? जनवरी 1921 में। लेकिन जैसा कि आप टाइटल पढ़ रहे हैं, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इस मूवमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सारे सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन सारे सेक्शन के जो स्ट्रैंड्स थे वो सब के सब अलग थे। मतलब सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिटन हियर डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। ठीक है, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रेस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। ठीक है, ये जैसे पहली लाइन हो गई कि देश में जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है सबने स्वराज का मतलब आज़ादी के लिए ये जो आह्वान किया गया था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का, इसके लिए सब लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, मतलब सब लोग इसके लिए राज़ी हो गए। ठीक है, और सब लोगों ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इस कॉल ऑफ स्वराज में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, जो एक प्रकार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था इस मूवमेंट का, कि ये मूवमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। तो उसका एक आंसर ये है कि सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। और चूंकि अब हम जानते हैं कि सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था, तो अलग अलग मतलब का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस थी, और जिन जिन की एस्पिरेशंस पूरी नहीं हुई उन लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट करना बाद में बंद कर दिया। तो ये मूवमेंट अनसक्सेसफुल, मतलब पार्शली सक्सेसफुल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ फ़ायदे भी बहुत सारे हुए थे, लेकिन एंड में पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा। तो सीधा सा रीज़न उसका ये था कि सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। देखो, स्वराज का मतलब अलग अलग कैसे था, तो आप सिंपल सी बात इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे जो किसान होता है, वो किसान क्या परेशानियां झेलता है, तो उसकी सबसे पहले परेशानी होती है कि भाई उसकी फसल सही सलामत हार्वेस्टिंग सीज़न तक पहुँचे। हार्वेस्ट होने के बाद फसल जो है वो क्या हो जाए, मार्केट में अच्छे दामों पर बिक जाए, और अच्छे दामों पर बिकने के बाद उसकी इनकम अच्छी हो जाए, उसे रेवेन्यू कम चुकाना पड़े, उसे अगली फसल के लिए किसी से लोन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, ये सारी उसकी प्रॉब्लम्स होती है। तो ब्रिटिश लोगों के टाइम पर तो ये प्रॉब्लम किसानों की बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे किसानों से, वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, और किसान लोग जो थे कहीं ना कहीं वो उस रेवेन्यू की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे थे। क्यों पूरी नहीं कर पा रहे थे? तो ये आप सबको पता है कि भाई एग्रीकल्चर इज़ सो मच अनसर्टेन इन इंडिया। एग्रीकल्चर की अनसर्टेनिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ये हम लोग सब जानते हैं। क्यों अनसर्टेनिटी ज़्यादा है? तो कभी बारिश नहीं होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हो पाती, कभी कीड़े लग गए फसल अच्छी नहीं हो पाई, कभी क्या होता है कि कभी ओलावृष्टि हो गई फसल अच्छे से नहीं हो पाई। ठीक है, कभी सूखा पड़ गया तो फसल अच्छे से नहीं हो पाई, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल अच्छे से नहीं हो पाई, कभी फसल में कीड़े लग गए। ठीक है, कभी ज़मीन प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही है। ठीक है, तो
ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिनमें से बहुत सारे, जो कि जिनमें से बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो किसानों के हाथ में नहीं होते। और जब फसल कमज़ोर होती है और इनकम अच्छी नहीं होती तो किसान रेवेन्यू कैसे पे करेगा? तो भाई किसान की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर ब्रिटिश लोगों के टाइम पर, कि वो रेवेन्यू कैसे पे करेगा? तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा समय जब उनसे जो ज़्यादा रेवेन्यू लिए जा रहा है वो रेवेन्यू उनसे कम हो जाएगा और उनके सारे कर्जे वगैरह चूक जाएंगे, उनके लिए वो स्वराज हो गया। ठीक है, क्योंकि वो परेशान उस चीज़ से, तो उनके लिए स्वराज का मतलब वो हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि हम गरीब किसानों की बात करेंगे, हम आगे जाकर जो है वो ट्राइबल पीपल की भी बात करेंगे, हम प्लांटेशन वर्कर्स की भी बात करेंगे, हम मिडिल क्लास की भी बात करेंगे। तो इन सारे सेक्शंस जो है, मिडिल क्लास, ट्राइबल सेक्शन, जो आपका रूरल एरिया के किसान हो गए, प्लांटेशन वर्कर हो गए, इन सब की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। तो इन सब के लिए स्वराज का मीनिंग भी अलग अलग है। ठीक है, गॉट इट। तो जब सबके लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग है तो इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने स्वराज का मीनिंग ढंग से समझा ही नहीं। क्योंकि जब आप स्वराज को लेकर जब आप सारे एक साथ आकर कोई मूवमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब सबको स्वराज का मीनिंग एक समझना चाहिए। और वो एक स्वराज का मीनिंग क्या है? देश को आज़ाद कराना, ब्रिटिश लोगों को देश से भगाना। लेकिन सब लोगों ने मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि उन सबकी अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस थी। तो ये भी एक कारण रहा कि भाई ये मूवमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है जनवरी 1921 में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट इन टाउन्स। ठीक है, शहरों में या अर्बन एरियाज़ में इस मूवमेंट ने क्या रंग लिया? ठीक है, अर्बन एरियाज़ में इस मूवमेंट ने क्या रंग लिया? तो सबसे पहला जो रंग था इस अर्बन एरिया में वो क्या था? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपको दिमाग में बिठानी है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड, मैंने क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन सिटीज़ या टाउन्स, एक्सप्लेन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मैंने इसको, ऐसे तो आपको 3 ही पॉइंट्स बनाने हैं ओवरऑल, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा बाइफरकेट ज़्यादा किया ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक बार आप और पढ़ सकते हैं। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन सिटीज, एक्सप्लेन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका? ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या है? तो सिटीज़ के बारे में बताना है कि भाई सिटीज़ में मूवमेंट कैसे शुरू हुआ। तो सिटीज़ में मूवमेंट शुरू हुआ विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास। शहरों में मूवमेंट किसने शुरू किया? मिडिल क्लास ने। अब ये मिडिल क्लास कौन होते हैं? मिडिल क्लास वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है जो न तो रिच है ना पुअर है। मतलब आप उनको पुअर की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, आप उनको रिच की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास पैसा तो है लेकिन इतना पैसा नहीं कि वो रिच कहलाए, लेकिन वो इतने गरीब भी नहीं है कि उनको पुअर की कैटेगरी में डाल दिया जाए। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मिडिल क्लास। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये मिडिल क्लास भी 2 प्रकार के हो गए, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, लेकिन यहाँ हम कॉमन मिडिल क्लास टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सिटीज़ में मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो हुआ मिडिल क्लास के साथ। तो ये मिडिल क्लास जो होती है ना, ये किसी भी देश के अंदर बहुत ही डिसाइडिंग क्लास होती है। क्यों ये बहुत ही डिसाइडिंग क्लास होती है? तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न ये है कि ये जो मिडिल क्लास है इनके पास टूल्स क्या होते हैं? भाई इनके पास बहुत पैसा नहीं होता कि ये रिच कहलाए, लेकिन इनके पास किस चीज़ का, मतलब ऐसा क्या होता है कि मिडिल क्लास में आ गए? तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, दे ऑल आर एजुकेटेड, ऑल मिडिल क्लास इज एजुकेटेड। और मैक्सिमम देशों में जितने भी बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए हैं उन सब रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्यों मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? तो उसके पीछे रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि भाई मिडिल क्लास के अलावा जो 2 क्लास है, रिच और पुअर, तो रिच हमेशा रूलिंग रहा है और पुअर हमेशा से नीचे के तबके की तरफ रहा है। पुअर की पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी में जाती है कि उसको कमाना है, उसको पैसा कमाना है, उसको कैसे भी करके अपने घर चलाना है, दोनों टाइम उसके बच्चों को खाना मिल जाना चाहिए। तो वो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। वो कभी नहीं सोचता है कि उसे पढ़ना है, लिखना है या उसे कहीं और चला जाना है। तो उसको हमेशा पुअर कंडीशन में रखा जाता है। और ये पुअर कंडीशन में रखता कौन है? वही रूलिंग क्लास जिसको हम रिच क्लास कहते हैं। जैसा आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबल एंड व्हाट वी कॉल इट थर्ड स्टेट। तो आपको पता है कि भाई क्लर्जी कौन थे, नोबल कौन थे और थर्ड स्टेट कौन थे।
अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया किसकी वजह से? मिडिल क्लास की वजह। ये मिडिल क्लास कौन थे? ये मिडिल क्लास थर्ड स्टेट के अंदर अपर क्लास थी, क्लर्जी नोबल नहीं। जो तीसरी सेक्शन था थर्ड स्टेट जिसमें हम कहते हैं, जिसमें कुछ पैसे वाले, कुछ नौकरी पेशा वाले लोग, गरीब लोग, सारे जिनको थर्ड स्टेट कहते हैं, उनमें से वो लोग जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने इनकम थोड़ी बहुत करना शुरू कर दी थी, जो समझदार हो चुके थे, जो सही और गलत के बीच का फ़र्क जानते थे, वो मिडिल क्लास वाले लोग थे। इनके पास पैसा तो नहीं होता, लेकिन इनके पास एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि भाई इनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पर भी यही है कि भाई मिडिल क्लास लोगों ने सिटीज़ में, इंडिया में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, अब इसमें इवेंट्स क्या क्या हुआ है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसमें आपको ये इवेंट्स लिखने हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन करना शुरू कर दिया। कैसे नॉन कॉपरेशन करना शुरू किया? स्कूल्स और कॉलेजेस में हज़ारों की संख्या में बच्चों ने, जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस थे, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, मतलब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। हेडमास्टर्स और टीचर्स जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और जितने भी लॉयर्स थे जो गवर्नमेंट कोर्ट में जाते थे, उन सब लोगों ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। ठीक है, तो बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा पूरे देश में काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट कर दिए गए। ठीक है, पूरे भारत में जितने भी काउंसिल इलेक्शन होने थे अलग अलग प्रोविंसेस में, वो सब बॉयकॉट कर दिए गए। सिर्फ एक मद्रास प्रोविंस में ये बॉयकॉट नहीं हुए। कहाँ पर बॉयकॉट नहीं हुए? मद्रास प्रोविंस में। अब क्यों बॉयकॉट नहीं हुए? तो उसके पीछे सीधा सा आंसर है कि इनको बॉयकॉट बाकी सब ने तो किया था मद्रास प्रोविंस में, लेकिन जस्टिस पार्टी ने इनको बॉयकॉट नहीं किया। ये जस्टिस पार्टी क्या है? ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी है। ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स कौन है? ये नॉन ब्राह्मण्स वो है जो खुद को ब्राह्मण से अलग मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि भाई कई सदियों से ब्राह्मण लोग जो है उनका जो है शोषण करते हैं, मतलब उनको एक्सप्लॉइट करते हुए आए हैं, ऊंच नीच का भेद दिखाते हैं, अपर कास्ट हाई कास्ट लो कास्ट वाला प्रॉब्लम है। तो ये सारे लो कास्ट हाई कास्ट वाले प्रॉब्लम के मारे हुए लोग थे। तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसको कहा गया था जस्टिस पार्टी। ठीक है, और इन नॉन ब्राह्मण की पार्टी इसमें कहा गया, इन्होंने बॉयकॉट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके इनके हाथ में पावर आएगा, इनके हाथ में कुछ पावर आ जाएगा और ये पावर के ज़रिए ये ब्राह्मण लोगों की बराबरी कर पाएंगे और उनके साथ स्ट्रगल कर पाएंगे। तो इन्होंने फिर इसके लिए मना कर दिया। तो इस तरीके से आपका सिटीज़ में जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन सिटीज़, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये आंसर आपका कंप्लीट है। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे इसका आंसर लिखना है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हैं। मैं आपको पूरे स्क्रीन पर आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूँ, मूवमेंट इन टाउन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स में लिखना है जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और इसको आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ सिटीज़ के अंदर। ठीक है, अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज़ में शुरू हुआ तो इसके इफेक्ट्स क्या कह रहे हैं, मतलब इनके प्रभाव क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगेन ये आपका 3 मार्क्स का टॉपिक है। यहाँ से कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अंदर, तो जैसे मैंने आपको पहली लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द इकोनॉमिक फ्रंट वर ड्रामेटिक। ये लाइन अभी एज इट इज लाइन उठकर आ जाएगी, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करके लिख देंगे, सपोर्ट विथ सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। और वो क्वेश्चन क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इफेक्ट्स क्या थे सिटीज़ में। तो आंसर आपको यही दे रखा है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो इफेक्ट्स है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थे। ड्रामेटिक मतलब इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद जग गई थी, अब क्यों उम्मीद जग गई थी, तो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहली बात, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया।
लीकर शॉप्स को पिक कर लिया गया। देखो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना तो आपको समझ में आ गया होगा। लीकर शॉप को पिक करने का मतलब ये है कि धरना दे दिया दुकानों के सामने, धरना प्रदर्शन कर दिया, दुकानों की बिक्री बंद करवा दी कि वही शराब लीकर शॉप मतलब शराब की दुकान है, किसी भी शराब की दुकान से कुछ भी, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई लीकर शॉप से सब जो शराब वगैरह लोग पीने वाले होते हैं तो बहुत सारे लोग इसके आदतें मतलब इसके एडिक्ट हो जाते हैं लीकर के, और इस एडिक्ट होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि भाई उनकी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है, और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ता है घर की महिलाओं को। तो इस लीकर शॉप को पिक करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल फीमेल्स ने ही प्ले किया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक लेवल पर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो इम्पैक्ट थे वो बहुत ड्रामेटिक थे। मतलब ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है, आपको ध्यान रखना 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या किया गया, फॉरेन गुड्स विदेशी जितना भी सामान था उसको बॉयकॉट कर दिया गया, लीकर शॉप को पिक कर लिया गया, और जितने भी प्रकार के फॉरेन क्लोथ्स बाजार में बिक रहे थे उन सबको इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी गई। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या निकला, इम्पैक्ट इसका ये निकला कि इस साल 1921 और 1922 के बीच में पूरे देश में फॉरेन क्लोथ जो था, जो उसका इंपोर्ट जो था वो आधा रह गया। मतलब 1921 में फॉरेन क्लोथ भारत में आए थे 102 करोड़ रुपीस के, जो कि 1922 में सिर्फ 57 करोड़ रुपीस के हो गए। मतलब देख लो आप कि मतलब 50% क्लोथ्स की मार्केट के अंदर परचेसिंग बंद हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कि भाई इकोनॉमिक लेवल पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और कितना नुकसान हुआ, अराउंड 45 to 47%, या आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 50% का नुकसान हुआ, आधा हो गया। ठीक है, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रेड करने के लिए फॉरेन गुड्स में। मतलब फॉरेन गुड्स के ट्रेडिंग करने से सारे मर्चेंट्स ने मना कर दिया, ट्रेडर्स ने और मर्चेंट्स ने, और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो किसी भी प्रकार के फॉरेन गुड्स को फाइनेंस नहीं करेंगे। अब देखो, जब विदेशी कपड़ा विदेशी सामान आना देश में आधा हो गया, मतलब उसकी इंपोर्ट कम हो गई, फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से सबने मना कर दिया, फॉरेन गुड्स को फाइनेंस करने से मना कर दिया, तो भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आपको सोचना होगा कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि देश में बनने वाले जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो यहाँ लिखा हुआ है पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड, लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स को डिस्कार्ड करना मतलब उसको त्यागना शुरू कर दिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ इंडियन क्लोथ्स पहनेंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स के अंदर प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया और हैंडलूम बढ़ता चला गया। मतलब हैंडलूम, हाथों से बनाने वाले कपड़े का भी प्रोडक्शन बढ़ गया। तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितना है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। गॉट इट। तो अगेन मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। तो इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब आर्थिक क्षेत्र में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सिंपल सा आंसर है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ड्रामेटिक रहा। फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट कर दिया गया, लीकर शॉप को पिक कर लिया गया, फॉरेन क्लॉथ्स को यूज बॉनफायर मतलब इकट्ठा ढेर बनाकर उन पे आग लगा दी गई। फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट जो है वो देश में आधा रह गया। 1921 में जहां 102 करोड़ रुपीस का कपड़ा इंग्लैंड से आता था वो अब सिर्फ 1922 में 57 करोड़ रुपीस का ही रह गया, मतलब इंपोर्ट आधा हो गया। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया और फॉरेन गुड्स को फाइनेंस करने से भी मना कर दिया। लोगों ने विदेशी कपड़ा या इम्पोर्टेड कपड़ा पहनने से मना कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ इंडियन कपड़े ही पहनेंगे, और इंडियन कपड़े अगर वो पहनेंगे तो इसका मतलब ये कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और उनके हैंडलूम्स, इंडियन हैंडलूम्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही हार्ड हिट हुआ था, और ये हार्ड हिट हुआ था क्या चीज़, आपका
इकोनॉमिक जो इकोनॉमी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपोर्ट के ज़रिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आघात हुआ था। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने पूरा आंसर रख रहा हूँ इसको, ये एज इट इज़ क्वेश्चन का आपको एज इट इज़ पॉइंट में आंसर बना कर देना है, ये का यही आंसर आपको लिखना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में तोड़ा है, वैसे आप इसको 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लीकर शॉप्स पिकेटेड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका हो गया द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स हाफ बिटवीन इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड। तो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाकर आप एक सिंगल पॉइंट बना सकते हो और थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, इसको आप पॉज कर लीजिएगा और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो शहरों की बात कर रहे हैं हम। शहरों के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कैसे हुआ वो हमने पढ़ लिया, फिर उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे हुआ ये हमने पढ़ लिया। अब आगे का क्वेश्चन है कि इसके बाद क्या हुआ। शहरों में जब ये मूवमेंट इतना अच्छे से इम्पैक्ट दे रखा था तो इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? ड्रॉबैक्स, कि इतना अच्छा इम्पैक्ट होने के बावजूद भी ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ सिटीज़ के अंदर। तो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन सिंपल सा है, गिव रीज़न वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स। शहरों में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन, कमज़ोर क्यों पड़ गया। स्लो डाउन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कमज़ोर क्यों पड़ गया, मतलब इसका जितना इम्पैक्ट हमने पढ़ा वो इम्पैक्ट लास्ट तक क्यों नहीं आगे बढ़ पाया। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन है कि स्लोइंग डाउन ऑफ मूवमेंट इन सिटीज़। अगेन ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला रीज़न कि ये मूवमेंट जो है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो पहला रीज़न है खादी वाज एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ एंड पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। तो पहला पॉइंट क्या है आपका कि खादी जो थी, मतलब खादी का मतलब होता है इंडिया में हाथ से बना हुआ कॉटन का कपड़ा। ठीक है, वो बहुत महंगा था, और चूंकि आप जानते हो कि भाई हाथों से बना हुआ कपड़ा महंगा ही होता है, हैंडलूम हमेशा महंगे ही होते हैं, और जो मशीन में बने हुए कपड़े होते हैं जो मास लेवल पर बनाए जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पर बनाए जाते हैं, जो कि मिल्स में प्रोड्यूस होते हैं, वो हाथों से बने हुए कपड़े के कंपैरिजन में क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने इंपोर्ट तो बंद कर दिया कि भाई इंपोर्टेड क्लोथ हम नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो हम क्या पहनेंगे, हम इंडियन क्लोथ पहनेंगे। क्या पहनेंगे, खादी पहनेंगे, लेकिन खादी तो महंगी है, तो गरीब लोग खादी कैसे अफोर्ड करेंगे। भाई एक बार आपने खादी का कपड़ा पहन लिया, लेकिन हर बार आप खादी का कपड़ा थोड़ा ना पहन पाएंगे, क्योंकि भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो गरीब थी, उनके पास इतना पैसा थोड़ी ना था कि वो महंगी से महंगी खादी खरीद ले। तो जब वो महंगी खादी नहीं खरीद पाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो अगेन उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं। भाई गरीब आदमी क्या करेगा, कोई भी गरीब आदमी वो तो अपने घर वालों के बारे में सोचेगा, वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं भाई मेरे बच्चों को क्या पहनाऊँ, मेरे घर वालों को क्या पहनाऊँ। तो क्या हुआ फिर, सिंपल सी बात है कि भाई जब खादी वो एफर्ड नहीं कर पा रहे थे पहनना, तो उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने मील का कपड़ा पहनना जो है शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक नाकामी हुई मूवमेंट करने वालों से, जो मूवमेंट ने ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया था कि भाई खादी को सस्ते में अवेलेबल वो नहीं करा पाए, और खादी महंगी होने की वजह से जो गरीब लोग थे वो उसको एफर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से लोगों ने फिर से किसकी तरफ रुख कर दिया, उन्होंने आगे से अगेन रुख कर दिया किसकी तरफ, मिल मेड क्लोथ की वजह से। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चूंकि हमने जैसे पढ़ा था कि भाई ब्रिटिश कंट्रोल्ड स्कूल्स को छोड़ दिया बच्चों ने, कॉलेजेस को छोड़ दिया, हेडमास्टर टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, जो आपके लॉयर्स थे उन्होंने उसको छोड़ दिया, व्हाट वी कॉल इट, कोर्ट्स को उन्होंने छोड़ दिया। अब क्वेश्चन इस कि अब वो करेंगे क्या, वो तो बेरोजगार हो गए, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, क्या उनके पास कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन है। भाई बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल कॉलेजेस तो छोड़ दिया, अब वो कहाँ जाएंगे, अब वो कहाँ पढ़ेंगे।
क्या पूरे भारत में इतने कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जहाँ पर ये बच्चे जाकर, इंडियन स्कूल्स या कॉलेजेस हैं जो जहाँ पर ये बच्चे जाकर पढ़ सकते थे? मतलब कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं थे। तो बच्चों पढ़ाई के लिए क्या करेंगे भाई? पढ़ना तो है ही। तो अगेन बच्चे कहाँ चले गए? स्कूल्स भी वही गवर्नमेंट स्कूल्स में, ब्रिटिश स्कूल्स में, ब्रिटिश कॉलेजेस में चले गए। सिमिलरली टीचर्स और हेड मास्टर, भाई घर चलाने के लिए इनकम तो चाहिए। इनकम नहीं है तो इनकम कैसे लाएंगे वो? भाई स्कूल कॉलेजेस तो उन्होंने छोड़ दिए, तो अब क्या करेंगे वो तो बेरोजगार हो गए। कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं उनके पास। तो उन्होंने क्या किया? एंड में जाकर उन्होंने फिर से वही गवर्नमेंट स्कूल कंट्रोल्ड कॉलेजेस और सब कुछ चालू, मतलब फिर से उन्होंने ज्वाइन कर दिया। और क्योंकि इंडियन अल्टरनेटिव ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और पूरे भारत में अवेलेबल नहीं थे, तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों फिर से कहाँ चले गए? गवर्नमेंट स्कूल्स में। और सिमिलरली केस लॉयर्स के साथ, तभी गवर्नमेंट कोर्ट छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद ज़िंदगी भर बेरोजगार थोड़ा ना रहेंगे। अल्टरनेटिव्स तो कुछ ही नहीं। तो लॉयर्स ने भी फिर क्या किया? अगेन उन्होंने फिर से गवर्नमेंट कोर्ट ज्वाइन कर लिया। सीधा सा क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, गिव रीजन वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स या सिटीज। तो पहला रीजन, खादी वाज एक्सपेंसिव, खादी बहुत महंगी थी, और मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ जो था वो बहुत सस्ता था, और लोग खादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने फिर से मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ जो विदेश से आ रहा था उसको उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, ये कपड़ा सस्ता था और खादी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो थी वहाँ पर एक प्रॉब्लम नजर आई कि भाई ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को अगर आप बॉयकॉट कर दोगे तो कोई अल्टरनेटिव तो है ही नहीं, कोई अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो है ही नहीं, और जो हैं वो बहुत गिने चुने और लिमिटेड जगह पर ही, हर जगह है ही नहीं। तो भाई वो क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे? वो टीचर्स और स्टूडेंट फिर से गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, और लॉयर्स फिर से गवर्नमेंट कोर्ट जो, मतलब जितने जोर शोर से हमने जो टॉपिक पढ़ा था, हाउ डिड मूवमेंट स्टार्टेड, ये जो जोर शोर से हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे ये दोनों, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एंड में जाकर धराशायी हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन पॉइंट्स के अल्टरनेटिव्स देश में अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, गिव रीजन वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स इसका आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ये टॉपिक आपका पूरा है। डिफरिंग स्ट्रैंड्स में हमने सबसे पहला वाला टॉपिक मूवमेंट इन टाउन्स, इसको हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे रेबेलियन इन कंट्री साइड के बारे में। मतलब भाई हमने शहरों के अंदर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम कल बात करेंगे कि भाई शहरों से निकलकर हम जाएंगे गाँव की तरफ, कंट्री साइड, रूरल एरियाज़ की तरफ। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चला, क्या ये सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स वगैरह है वो जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको उसके जवाब दे दूंगा। ठीक है, स्कूल से आप मेरे नंबर ले सकते हैं, अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग लाइव क्लासेस की भी डिमांड कर रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था भी लाइव क्लासेस में भी चलाना चाहता हूँ कि भाई लाइव क्लासेस में दे पाऊँ, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन दिस लॉकडाउन मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, तो मैं लॉकडाउन के चक्कर में रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल मेरे पास नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके रिसोर्सेज अवेलेबल कराऊँ, जिससे कि मैं लाइव क्लासेस चलाने के लायक हम कंटेंट बना पाए, जैसे कि बोर्ड्स वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पर है नहीं। तो वो मेरे पास अवेलेबल होते ही मैं आपकी लाइव क्लासेस की डिमांड पूरी करूँगा। तब तक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। ओके, थैंक यू, ध्यान रखिएगा, और मैंने जैसा बताया कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।